Hello students, in this video we discuss about a very important topic, equipotential surface. Okay, and we will discuss also its application and properties. Okay, so see the video very carefully. If you have any doubt, please comment on my YouTube channel. Okay, subscribe and like the videos. Okay, come back here. देखिए equipotential, equi means equal, and potential means potential. Okay, and this is surface, equal potential surface. Okay, any surface on which each point have same potential, that surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसी सरफेस आप ड्रॉ कर दीजिए जिसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उस सरफेस को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. ठीक है. सो नाउ वी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सी हियर, एन इक्विपोटेंशियल surface is that surface in an electric field, in an electric field which have same electric potential at each point of that surface. Okay, so this is the definition of equipotential surface. Now we take two important properties of equipotential surface here and discuss in detail. Now first property, first, the work done in bringing a charge from one point to another point of the equipotential surface. अब जो रिजल्ट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर मैं आंसर लिखूंगा यहां पर. तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज
अब ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। सबसे पहले मैं सबसे इजी केस कंसीडर करता हूं कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। सपोज ये पॉइंट चार्ज आपका प्लस क्यू है, ओके, एंड यू नो वेरी वेल about the electric potential due to a point charge. You know very well electric potential, that means electrostatic, because charge is in rest. Electrostatic potential for this due to point charge. Q is, देखिए यहां पर क्या होगा, ये V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। क्लियर है ना? See here, Q is fixed in that case, and 1/4πε0 is also a constant. So we can say that implies that V is directly proportional to 1/R. That is, V depends only on R. Okay, if we fix the value R, then the value of V also fixed. So see here, around this point charge at same distance, if we take a point, then the locus of that point which are equidistant from this point charge make a surface in space which is known as surface sphere. So here in 2D we can say that a circle. तो 2D में आप जब बात करोगे तो एक सर्किल की तरह काम करेगा ये। तो ये आपकी R वैल्यू हो गई। ऐसे ये R की एक वैल्यू है, एक अनदर वैल्यू पर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। तो आप देखिए, आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये दोनों ही आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफरेंट इंस्टेंसेस पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, बट ऑल पॉइंट्स आपकी सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो देखिए, ये यहां से सभी जो पॉइंट्स है इस सर्किल पर ऑल सेम डिस्टेंस पर, क्योंकि रेडियस इसी प्रकार। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, इसी प्रकार आप और भी खींच सकते हैं। अब आप देखिए, सपोज करिए कि आपको इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां पर लेकर जाना है। तो मान लीजिए आपने ये पाथ चूज किया और इस पॉइंट ए से आप इस पॉइंट बी पर। तो फॉर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, according to the definition of equipotential surface, electric potential at each point on the equipotential surface is same. So we can say that VA equals to VB. But to calculate the work done in bringing a charge from this point to this point, we can use the definition of electric potential difference. So using the definition of electric potential difference, VB माइनस VA। देखिए, मैंने आपको बताया कि एनी चार्ज, कोई भी चार्ज आपका हो सकता है, किसी भी अमाउंट का हो सकता है। सपोज कर लीजिए कि ये चार्ज आपका Q डैश है, देन द फॉर्मूला इज A to B डिवाइडेड बाय फॉर Q नॉट, वी कैन यूज Q डैश और Q नॉट। सपोज कर लीजिए Q नॉट यूज कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए VB एंड VA आर सेम, so we can hear it 0, then it will be W A to B divided by Q naught implies that, यहां पर देख लीजिए, W A to B is equal to 0. That means for each charge, the work done in bringing a charge from one point to another point on a equipotential surface is always 0. So remember this point, which is very important. कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इनडायरेक्टली
और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, डायरेक्ट आंसर के केस में कभी कभी वो रेडियस दे देता है, कभी साइज दे देता है, कभी कुछ तो कभी चार्ज की अमाउंट नहीं बताता, वर्कडन पूछ रहे तो डाउटफुल करता है बच्चों को कि हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट चाहिए, ये चाहिए, बट इसमें चार्ज की कोई जरूरत आपको नहीं है, साइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके, सो आई थिंक आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज करना है। हमने आपको बताया था कि ग्रेडियंट का मीनिंग होता है कि यदि हम किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी अनदर क्वांटिटी में यदि कोई चेंजिंग होती है तो हम वो डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं जिस डायरेक्शन में चेंजिंग आपकी मैक्सिमम हो उस फिजिकल क्वांटिटी में। तो इसमें हेल्प हमारा करता है ग्रेडियंट। तो हमें यहाँ पर ऐसा ही कुछ फिनोमिना दिखाई दिया कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखो मूव करते हैं, यहाँ से जैसे आर वैरी करेगा आपका पोटेंशियल भी वैरी करता है। तो अब हमें यहाँ पर वो डायरेक्शन चूज करनी है जिस डायरेक्शन में जाने पर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल में इंक्रीमेंट मैक्सिमम हो। आप देखिए जरा यहाँ पर, वहां पर हमने प्रूव भी किया था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम इंक्रीमेंट डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो सी हियर, इफ यू गो in this direction then potential will be decreases। okay, so clearly अब आप यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में जाने पर आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर ये आप मान लीजिए V1 है और ये यहाँ पर आपका V2, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2, डिक्रीजिंग है ना। अब आप बताइए कि यहां पर ये हमने मान लिया कि इसकी रेडियस है इस पॉइंट पर, है ना, रेडियस है ना, और रेडियस के बारे में आपको नॉलेज है कि रेडियस जो है ऑलवेज की टेंजेंट जो होती है इस पॉइंट पर उस पर नॉर्मल होती है। ये देखिए इस पर, है ना, तो यहां पर ये इस पे क्या होगी, नॉर्मल। अब आप देखिए जो ये डिफरेंस है इस सरफेस से इस सरफेस पर जाने पर ये तो आपका फिक्स होगा। अब आप चाहे इस पाथ को चूज करें, चाहे इस पाथ को चूज करें और चाहे इस पाथ को। अब आप बताइए यदि आप इस पाथ को चूज करते हैं यहां से यहां जाने में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल की वो डिस्टेंस लार्ज है, तो इसलिए रेशो आपका क्या होगा, कम होगा। यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी कम है, यहां पर और भी थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस, बट सबसे जो लोवेस्ट डिस्टेंस है आपकी वो ये है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होता है dv बाई डी आर, यार वो ये कह सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिस डायरेक्शन में ये मैक्सिमली डिक्रीज होता है। तो आप देखिए डिक्रीमेंट डायरेक्शन तो यही है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिस्टेंस इंटरवल जो आपका है ये स्मॉलेस्ट हो। तो आप यहां से इस पॉइंट पर जाने का आप कोई भी पाथ चूज कर ले, सबसे स्मॉलेस्ट ये होगी आपकी परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये कह सकते हैं कि यही वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में जो चेंजिंग है वो मैक्सिमम होती है और इधर जाने पर डिक्रीमेंट होता है। तो इसलिए यही डायरेक्शन आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। आप जो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर चेक कीजिए आप, ये यहाँ पर क्या है, टेंजेंशियली है, टेंजेंट है, और इस टेंजेंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में मैंने वहां पर पहले लिखवाया नहीं था क्योंकि पोटेंशियल सरफेस आपको पढ़ाई नहीं गई थी। तो ध्यान रखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज। ओके, तो ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी सेकंड। क्लियर है ना, तो नोट करते हैं इसे पॉइंट को भी। देखिए प्रॉपर्टी सेकंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नॉर्मल, नॉर्मल कह सकते हैं परपेंडिकुलर, और नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल टू द normal to the each point of equipotential सरफेस। ओके, क्लियर है ना। अब आप चलिए देखिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जरा देखिए, अब मैं लेता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स, यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखिए किस प्रकार होगी, ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप, एप्लीकेशन भी। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पेपर्स में पूछी गई है सीबीएसई के। तो प्रॉब्लम्स क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करानी बताई, किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब कंसीडर करते हैं अनदर सिचुएशन, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कांस्टेंट कंसेप्ट देखिए, फिर इन जेड डायरेक्शन। ये आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा। देखिए यहां पर वेरिएशन आपको जेड डायरेक्शन में बोल रहा है, तो आप यहां पर जेड ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर आप लेते हैं निगेटिव साइन। देखिए ये ऑलवेज होता है आपका मैक्सिमम इंक्रीमेंट, और ये निगेटिव साइन इसमें लगते ही ये इस पूरी ओवरऑल टर्म को बना देता है मैक्सिमम डिक्रीमेंट। ओके, और जो मैक्सिमम डिक्रीमेंट की डायरेक्शन है वो आपकी होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ये मैंने आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताया, क्योंकि जब आप वन डायमेंशन की बात करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव साइन आपके डायरेक्शंस को शो करते हैं, और जब आप मोर देन वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्शन जो है वेक्टर्स की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो देखिए अब इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इन दिस केस E is constant, implies that। देखिए मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और इससे आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है, जिसे आपका माइंड इजीली क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा जितने बेसिक में जाने कर मैं टॉपिक्स को आपको क्लियर करा रहा हूं। तो जहां तक मुझे लगता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंसेप्ट पर आपकी वीडियो बनाऊं, और नए नए कंसेप्ट के बारे में मुझे कमेंट कीजिए। ओके, जो भी आपके डाउट्स हो, और यदि कोई आपके सामने प्रॉब्लम हो क्रिटिकल, वो भी मुझे भेजिए, मैं भी कोशिश करूंगा मुझे कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर देखिए आप, ई कॉन्स्टेंट व्हेन माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड विल बी कॉन्स्टेंट। ध्यान है कि डिक्रीमेंट की डायरेक्शन होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन हमारा पोटेंशियल का डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो आप देखिए ये डेल्टा वी इक्वल्स टू, आप ये मान लीजिए निगेटिव साइन कांस्टेंट में चलेगा, आप ये कह दीजिए, तो समथिंग इज कांस्टेंट डेल्टा जेड मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जेड।
तो जितना वेरिएशन आप इसमें करेंगे उतना ही वेरिएशन इसमें होगा। मतलब कि यदि आप चेंज इन डेल्टा जेड डबल करते हैं तो डेल्टा वी भी आपका डबल हो जाएगा। एंड फॉर सेम सेपरेशन डेल्टा वी विल बी सेम। ओके, सपोज कर लीजिए आप, देखिए हम कंसीडर करते हैं ये आपको जेड डायरेक्शन मेंशन की तो 3 डायमेंशन ही आपको मेंशन करना होगा। जनरली तो एक्स वाई जेड ऐसे क्रिएट करते हैं सभी, बट प्रॉब्लम ये होगी जेड डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी सरफेस ड्रॉ करने में। अब हम करेंगे क्या, हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी वाई, और ये बन गया साइक्लिक ऑर्डर में। अब आप देखिए ये डायरेक्शन हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्टेड जेड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब आप बताइए, जो आपको ये पॉइंट लिखवाया सेकंड, इसमें आपने क्या कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब आपको यहाँ से ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल लेना कि सरफेस कैसी होगी, आपका भाई स्फीयर होगा या सर्किल होगा या प्लेन सरफेस होगी या कोई कॉम्प्लिकेटेड सरफेस होगी। तो देखिए इस पॉइंट से काफी आपको क्लियर होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नॉर्मल होना चाहिए। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी आपका ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी ऐसे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी सरफेस हो सकती है जिस पर ये दोनों ही वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी सरफेस आपकी देखिए, यदि मैं ऐसे लिखूं तो एक प्लेन सरफेस ही पॉसिबल है जिस पर ये वेक्टर्स ऑल वेक्टर्स इन जेड डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, नॉर्मल, और वो सरफेस की डायरेक्शन में होगी एक्स वाई प्लेन। तो मतलब ये हुआ कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपकी एक्स वाई प्लेन में है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब इसका कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज कर लीजिए कि ये पोटेंशियल V है, डिक्रीज होगा ना इस डायरेक्शन में। तो अभी मैं मानता हूं एक, अब आप देखिए, तो यदि आपको भी यहां पर बताया यदि सेम सेपरेशन है तो पोटेंशियल में चेंजिंग भी सेम होगी। तो मैं कंसीडर करता हूं कि आपका जो Z1 है वो आपका है A, जो आपका Z2 है वो है 2A, है ना। और जो आपका यहां पर V1 है वो हमने सपोज कर लिया V, तो V2 आपको बताना है कितना होगा। देखिए यहां पर आप यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला डेल्टा V से रिलेटेड, है ना। तो कितने टाइम्स होगा ये आपको बताना है। तो डेल्टा V क्लियर है ना। तो आप देख लीजिए इस चीज से, तो यहां से जब आप पुट करने की कोशिश करेंगे तो यहां से आपको कुछ मिलेगा। तो सपोज कर लीजिए कि आपने डिफरेंस कितना लिया, 2V हमने कर दिया, तो यहां से जो आपको डिफरेंस मिलेगा ये आपको V का मिल गया, यहां से डिफरेंस आपको कितना मिल गया, A का। क्लियर है ना। अब आप यहां पर देखिए एक अनदर सिचुएशन कंसीडर करिए Z3 की, 3। तो अब आप देखिए या आपको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो आपको डिस्टेंस चूज करनी होगी। तो आप ये कर लिए कि इसे आप फिक्स कर दीजिए, इसे आप फाइंड कर लीजिए कहाँ होगा, और आप ये 3 ले लीजिए, ये आपका 3 वोल्ट सेम बाय रिपोर्ट हुआ ना। अब आप यहां से देखिए तो डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 इक्वल्स टू डेल्टा Z1 बाय डेल्टा Z2। पुट करिए वैल्यू डेल्टा V1 की, डेल्टा V1 इज V and delta V2 is also V, that means V3 minus V2, okay, and delta Z1 is A, and यहाँ पर देखिए इसका मुझे पता नहीं कि Z3 कितना होगा, and minus 2A। चेक करिए, V से V कैंसिल आउट हुआ,
तो Z3 आप देखें कितना मिलेगा आपको, -2a होगा ना इधर, तो a + 3a, दैट मीन्स आपको कहां पर जाना, सॉरी फॉर दिस 2a, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 3a पोजीशन पर नेक्स्ट पोटेंशियल मिलेगा 3 वोल्ट। तो आप देखिए यहां पर तो सेम सेपरेशन पर आपको सेम पोटेंशियल्स मिलते हुए चलेंगे। आपको डिस्टेंस ही सेम रखनी है। अब ये डिस्टेंस जो इनके बीच का सेपरेशन है वो a, ये भी a, तो a से ही आप आगे जा सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपकी इसके नॉर्मल्स है, देख लीजिएगा आप उन सभी के नॉर्मल्स है पीछे तक ऐसे ही। अब दूसरी बात, यहाँ पर यदि आपने डिक्रीमेंट डायरेक्शन है तो आप ऐसे कर दीजिए कि यहाँ पर 3v, यहाँ पर आपका 2v और यहाँ पर आपका v। देखिए क्लियर वन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ही, उसके मैग्नीट्यूड से ही आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस की सभी इंफॉर्मेशंस इससे यूज कर हुआ ना। वर्क डन के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ मूव करता है इसी सरफेस पर, तो इस पर 0, बट यदि इससे इस पर मूव करेगा तब वर्क होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान रखिए कि सरफेस कैसी होगी उसे चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड से हेल्प ले सकते हैं यदि आपको पोटेंशियल नहीं गिवन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि किस किस सेपरेशन पर आपको ये पोटेंशियल्स मिलनी है। तो डिक्रीजिंग आपका पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। अब आपको करना क्या है कि एक फील्ड आपको दिया है जो यूनिफॉर्मली आपका क्या है, इंक्रीजेज है इन मैग्नीट्यूड। तो वो फील्ड आपका मैग्नीट्यूड में इंक्रीज कर रहा है इन द जेड डायरेक्शन, और आपको करना क्या है, बट रिमेन्स इन, ओके, तो यूनिफॉर्मली आपका इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड, बट डायरेक्शन उसकी फिक्स है जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड एग्जांपल में कि जो आपका सेकंड एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्मली क्या है, देखिए लगातार है, इस बात का ध्यान है कि यूनिफॉर्म है। यदि यूनिफॉर्म ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ ड्रॉ करने, हम कंटिन्यूअस वेरिएशन को शो कर सकते। यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन जेड डायरेक्शन, कांस्टेंट नहीं है। तो अब आप देखिए कांस्टेंट तो यहां पर आपको मिलेगा नहीं इन दैट केस, तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज्ड, तो ये भी आपका इंक्रीज्ड करेगा। देखिए डायरेक्शन से फिक्स हो गया कि ये होगा। अब आप बताएं डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जेड एंड मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज्ड फैक्टर। समथिंग इंक्रीज होगा ना, वो नहीं जानते कि किस मैनर से इंक्रीज हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन यदि गिवन होती तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, जैसे कंफर्मेशन यहाँ पर मिला है। तो आप बताइए कि ये वैल्यू आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल है वो आपका इनके बीच में वेरिएशन के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, दैट मीन्स वो निगेटिव साइन जो हमने छोड़ा वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे आपका ये वेरिएशन आपका इधर चलेगा सेम इंटरवल के लिए, सेम इंटरवल के लिए जैसे जैसे आप मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इस इंक्रीजिंग फैक्टर से ये आपका क्या होगा, क्या होता चले जाएगा, पोटेंशियल उतने ही फैक्टर से आपका डिक्रीज होता चले जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन है। तो मतलब यह है कि आपको पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। पोटेंशियल यहां पर भी डिक्रीजिंग है, बट यहां पर कांस्टेंट यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट था। देखिए आप चेंज इन देखिए, तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करना है, तो सॉरी इंक्रीज, तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पोटेंशियल, क्योंकि आप देखिए डिवाइड किए, यदि इसे इंक्रीज करना है तो इस वैल्यू को आपको इंक्रीज करना होगा। और इसे इंक्रीज करने का एक ही तरीका है कि जब आप ये वैल्यू क्या करो,
डिक्रीज करते हुए चले जाओ, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा इंटरवल, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके ना, तो टू इंक्रीज, तो हियर वी कैन से दैट टू इंक्रीज, ई को यदि आपको इंक्रीज करना है तो डेल्टा जेड को आपको डिक्रीज करना होगा। सो हियर वी कैन से दैट इफ वी ड्रॉ यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो हम इन्हें ये कंसीडर कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए कि एक यहाँ पर ले लीजिए और फिर उसके बाद ये 2 भी हो गया, और सपोज यहाँ पर ले लीजिए, आप इसे डिक्रीज कर दीजिए आप, और तीसरे वाली इसके और भी पास ले लीजिए ऐसे। तो सपोज करिए इंटरवल D1 है, ये आपका सॉरी फॉर A1, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। तो इन दैट केस यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा A1 ग्रेटर है A2 से, A2 ग्रेटर है A3 से, एंड सो। तो इन दैट केस फॉर uniformly increasing electric field but with fixed direction, the equipotent surface will be this type। okay, so this part which is very important on the point of examination and competition level, because equipotential surface have many properties of the electric field concept। okay, so I think मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक कोशिश किया आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आइए, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी घर में आपके पास मोबाइल से उन सबसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।